Entertainment is a universal language that connects people across borders, cultures, generations, and reminding us of our shared humanity. So, if you also abide by the same and if you follow the same principle, you have come to the right place. So, hello and welcome. This is your host Himanshi Kaushik, and I heartily welcome you in today's webinar on employment potential for theater in entertainment industry. And I hope that you all are doing fine, safe, sound, and happy at wherever you're taking this webinar from. So before we move on and learn a lot more about the employment potential in this particular industry, we have our experts here with us. So I shall introduce you to our expert. First, we have Mr. Lalit Parimu, an eminent film and television actor. He is an exceptional human who has his area of expertise in diverse backgrounds of life. Initially, he has done his schooling from Kashmir, and in 1982, he moved to Delhi to pursue his ambition and passion for theater and dramatics. And within very short span of time, he had participated in over 30 stage plays as a lead actor and director as well. Some of those dramas are Shri Shri Ganesh Mahima by Munshi Premchand, Iphigenia in Aulis Agnigarh by Mahashweta Devi, and Comedy of Errors by William Shakespeare. And in year 1992, he debuted in television and Bollywood films and has worked in Shaktiman, Fasle, Mulk, Furs, Himalaya Darshan, and other films as well. And if we count other films, we count them as Heather, Mubaraka, Sanshodhan, and many others. So, which actually makes it to more than 100 TV shows and films. So during his journey, he actually conceptualized Abhiyan Yoga, which is a Abhinay. Oh, very sorry, sir. Abhinay Yoga, which is unique combination of acting skills and yogic techniques, which actually helps in creating self-awareness and develop oneself with polishing of acting skills. Not only this, he has founded a theater group banner, Nat Samaj, with young enthusiasts and has been regularly doing meaningful theater since last 15 years. He has also written books on Hindi short plays titled मैं मनुष्य हूँ and Bhagavad Gita Ek Samvad. So, sir, it is a pleasure for us to be here, to be able to listen you in the webinar, and I heartily welcome you in the webinar, sir. Thank you so much. First of all, you were saying something, Himanshi? No, sir. Please continue. Thanks for this introduction of mine, and thank you, Dr. Smriti, for calling me here. And good morning, Martina Medhi. And I believe there are a number of students who are watching this webinar. Yes. They are the students of the university. Yeah. The students of theatre only? No, sir. Basically, we have different students who have shown interest in the course, in the title, in the industry as well. And we have all the diverse group of people, all the students who have joined us. Yeah. So good morning, all students. Yeah. Thank you for this honor. And I take it as an opportunity to share my ideas, my little bit experience of my life, and throw some more light on the subject which you have chosen, that employment opportunities for theater in entertainment industry. Yeah. Right. Sir, so may I take little more moments to introduce our other experts? Okay, please. Yeah. I'm very sorry to interrupt, sir. That's okay. Okay. Sir, okay, so attendees, we have other experts here as well, and I shall now introduce you to our second expert, Dr. Mukesh Kumar, a professor and dean, journalism and mass communication, films and television, theater, music, School of Liberal and Creative Arts, a well-known Indian face of Indian television, actually, having more than 34 years of experience in media, and has joined us here, who has been a YouTuber, writer, anchor, poet, academician, and has 6 news channels launched by him. News Express, Sahara Samay are some of those, and he has done different shows like Aapki Baitak,
Kahi Ankahi, and many others. And not only this, he is also a well-known author who has published 11 books till now and has been writing regular columns for magazines like Desh Bandhu. And his poetry collection, Sadho Jag Borana, is well appreciated in literary circles as well as amongst readers as well. So, sir, it is again a pleasure and to be able to listen you also in the webinar, and it's pleasure for all the attendees. And so, I welcome you in the webinar. And with this, I take the opportunity to introduce our third expert here, Miss Smriti ma'am, Dr. Smriti Bhardwaj, Head Department of Performing Arts, Lovely Professional University. An honors graduate, a doctorate in theater. She is passionate for making meaningful social contribution through theater. She is a certified psychodrama practitioner and has evolved her own set of techniques during research project, reducing stress through theater. During her 20 years of theater, she has conducted over 200 theater-based workshops for people from diverse backgrounds. Her MOOC on performing arts and allied subject on Swayam received accolades. She is currently helping students to find their passion and shape their careers in theater. So, ma'am, I again welcome you in the webinar. And with this, I shall introduce our fourth expert who is our alumni as well, Ms. Martina Mehdi, a theater educator and a practitioner. So she is an alumni of Department of Theater and Music, Lovely Professional University, and also has passed out from renowned drama school, Bhartendu Natya Academy, Lucknow. So, ma'am, I welcome you, and I just want all the participants to know that she's currently working as theater educator and freelance theater practitioner in Gurugram and Delhi, and doing a lot of work and in various capacities like actor, costume designer, and director. So, with this, now I welcome you in the webinar here, and now. I would like to, request Smriti ma'am to please carry on with the session. And please carry on with the questionnaires that we have for Parimu sir and Martina ma'am. Sure, thank you so much. First of all, heartiest welcome to Parimu sir and Martina. Sir, I have been watching you. I have grown watching your work, and I'm very glad to know that you are with us today. I won't take much of the time in or discussions. I would straight away like your great experience to help me as a student of theater, my alumni, and all other people who are watching from different corners of India and world. जब भी हम नाटक की बात करते हैं, थिएटर की ट्रेनिंग की बात करते हैं सर, एक बहुत बार देखा गया है स्टूडेंट्स में, जब मैं बात करती हूँ, जब वो इनिशियली आते हैं, पैशन बहुत होता है, मेहनत करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन एक अनजाना सा डर होता है कि जीवन में क्या हम बाकी जो MBA कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे या नहीं, क्या जिन एस्पिरेशंस को हम अपने पेरेंट्स से, समाज से कहीं ना कहीं लड़कर कह लीजिए या उनसे बाहर होकर चुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये फैसला सही होगा? आपसे बेहतर सर मुझे नहीं लगता कोई इस बारे में बात कर सकता है, तो मैं सीधा एक पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो थिएटर में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, क्या वो सही दिशा में हैं सर? चलिए, अच्छा है, सीधा सवाल तो जवाब भी सीधा ही है। पहली बात तो जिसने भी कला को चुना, या डॉक्टर मुकेश जी, मैं आपको अब देख रहा हूँ, मतलब अभी दिखे नहीं आप, बट आपका वो दिखा, तो नमस्कार, आपसे फिर रूबरू बात करेंगे। तो जिन्होंने भी कला को चुना है, उन्होंने सही चुना। पहली बात, कला विद्रोही लोगों का काम है, बहादुर लोगों का काम, जो लीक से हटके कुछ करना चाहते हैं, जो थोड़े से ज्यादा ताकतवर है और नियम कानून को तोड़ते हुए अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वही कला को अपनाता है। पहले तो अमेच्योर तरीके से अपनाता है, उसके बाद उसका प्रोफेशन वो बन जाता है जीवन में संघर्षरत रहने के बाद। तो ये विद्रोही स्वभाव क्या है, यहाँ पे थोड़ी बात करता हूँ। उसके बाद जो आपका मुख्य प्रश्न है,
वो कि अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हालांकि वो इसी विद्रोही तबीयत से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि जो हमारे दूसरे प्रोफेशन हैं, जैसे आपने अभी जिनका जिक्र किया, कंप्यूटर से लेके मेडिकल साइंस तक, उनमें एक सिस्टम बना हुआ है और अभी तक कला का कोई सिस्टम नहीं बन पाया। कारण गहरे में यही है, क्योंकि जो कलाकार होता है वो थोड़ा रिबेलियस स्पिरिट का होता है। तो रिबेलियस स्पिरिट वालों के लिए कोई सिस्टम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। अब उनको नौकरी के दायरे में 10 to 5 के साइकिल में ऑफिस जाने वाले करिकुलम में बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट में अवघड़ होते हैं। अवघड़ का मतलब आप समझते हैं, वो थोड़े से साधु सन्यासी के जैसे होते हैं। आज मन कर रहा है तो लिखेंगे, महीनों मन नहीं कर रहा तो नहीं लिख पाएंगे, ऐसा होता है। आज मन ऐसा किया कि अभी एक नाटक करना है, तो पागल की तरह सुबह से शाम 18-18 घंटे नाटक में झोंक देंगे अपने आप को। और इवन अगर वो शादीशुदा है तो बीवी का जेवर रख के भी नाटक कर लेंगे या फिल्म बना लेंगे। फिल्में बनाने वालों ने भी ऐसे ही काम किया। तो पहली बात जो मैं जहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं वो है थोड़ा सा रिबेलियस स्पिरिट। तो जो लड़का अपने भीतर रिबेलियस स्पिरिट लेकर चल रहा है, वही इस फील्ड में अपना करियर भी बना पाएगा। उसकी सहायता नेचर अपने आप करेगी। विधिवत तरीके से यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ये अलग बात है। लेकिन उसके अपने अंदर की जो बात है, उसके अंदर का जो जज्बा है, जिसे हम ऑर्डिनरी लाइफ में पैशन कहते हैं, वो पैशन उसे गाइड करता जाए। अब इसमें विरोध या विरोधी तत्व जो है उसके अंदर, या रिबेलियस स्पिरिट जिसे मैं कह रहा हूं, वो क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट क्या है, वो क्या गुण है, और वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि वो क्या नहीं कर पाएगा। वो सिस्टम के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं मिला सकता है। पहली बात, रिबेलियस स्पिरिट की एक खास विशेषता ये है, वो चाहे परिवार के नियम कानून हो, चाहे स्कूल कॉलेज के हो, चाहे समाज के हो, उसके अंदर का जो भाव जगत है वो उससे उद्वेलित करता रहता है, वो उससे डिस्टर्ब करता रहता है। और यही डिस्टर्बेंस कारण बनता है उसके क्रिएटिव वर्क का, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कविता हो, चाहे सिनेमा हो। वो शांत नहीं बैठ सकता। वो जो सिस्टम है, जो दुनिया है, जो समाज है, जो संसार है, जो परिवार है, या जो जितने भी मान्यताएं हमारी, उसको वो एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाता। ये एक बुनियादी एट्रीब्यूट उसके अंदर आ जाता है। वो कैसे आता है, वो प्रकृति का ही नियम कानून है। वो आदमी उसको एनालाइज करना चाहे तो बड़ा डिफिकल्ट है, वो जन्मों जन्मों से चला आता है। वही रिबेलियन उसको गीत लिखने के लिए प्रेरित करता है, वही रिबेलियन उसे फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करता है, वही रिबेलियन उसे ड्रामा करने के लिए प्रेरित करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है। अब इसमें उसके अंदर क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए मैंने ये बताया, क्या नहीं होना चाहिए। उसमें एक पॉइंट यही आता है कि वो दफ्तर के स्टाइल में काम करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। दफ्तर का एक सिस्टम है। तो जैसे मैंने कहा कि कलाकार अवघड़ होता है, कलाकार रिबेलियस होता है, तो वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से टेबल पे बैठना, फाइल लेना, इस ऑफिस जाना, उस ऑफिस जाना, एक बंधे हुए नियमावली से काम करना, ये उसके बस की बात नहीं होनी चाहिए। उसका मन करेगा वो रात के 11 बजे से लेके 5 बजे तक रिहर्सल करेगा, ऐसा तबीयत होनी चाहिए। या लिखेगा, रात भर लिखेगा, या पिक्चरें देखता रहेगा, या घूमता फिरता रहेगा, कहीं कहीं रेलवे स्टेशन में भटकेगा, कुछ करेगा। तो ऐसी तबीयत का व्यक्ति होना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ के अध्ययन करने वाला व्यक्ति रिबेलियस नहीं होता है। उसको खोजने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर वो ड्रामा के फील्ड में है तो समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, चरित्र कहाँ मिलेंगे, रिश्ते नातों में जो ऊंच नीच होती है उससे वो अपना खुराक ढूंढता है। तो ऐसे करके वो अपना एक रॉ मटेरियल तैयार करता है, फिर उसको वो प्रेजेंट करता है किसी आर्ट फॉर्म में। अगर हम यहाँ सिर्फ थिएटर की बात करें तो थिएटर तो शुरू से ही रिबेलियन का ही एक्सप्रेशन रहा है और अभी तक रहा है। ये तो ज्ञानियों ने, फिलोसोफर्स ने थिएटर की एनर्जी को संस्कृत ड्रामा के टाइम में माइथोलॉजी के जरिए ईश्वरमुखी बनाने की कोशिश की, और ग्रीस में उसको एक साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट के दायरे में ले चलने की कोशिश की, तो थिएटर वेल एक्सेप्टेड हो गया। ऐसे शेक्सपियर काल में भी थिएटर के जरिए बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट किया। जो लोग थिएटर पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि शेक्सपियर के प्लेस में आप राजाओं के
दरबार की जो कमजोरियां थी उसको हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि राजा और मोनार्क्स जो थे वो भगवान की तरफ पूजे जाते थे। 12वीं सदी से ऐसा शुरू हो गया, बल्कि और पहले ही। लेकिन राजा की छवि को तोड़ दिया शेक्सपियर के नाटकों ने, और ये बता दिया कि ये राजा की दुनिया जो है ये कितनी खराब है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप बड़े पैमाने पे है, अंदर इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स हैं, मर्डर्स हैं, और जनता में ये एक बड़ा भगवान की तरफ पूजे जाते हैं। तो शेक्सपियर के नाटकों का ही परिणाम है कि डेमोक्रेसी नाम की व्यवस्था 1688 में आई और एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम लेके समाज में एक परिवर्तन आया, बादशाह समाप्त हुई, डेमोक्रेसी आई। तो थिएटर का इतना बड़ा योगदान है। मॉडर्न टाइम्स में भी जो समाजवाद या साम्यवाद नाम की विचारधारा पनपे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसे भी नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रचारित होने का मौका मिला है। तो नाटकों के जरिए थॉट वेव्स को चेंज करना, नाटकों के जरिए थिंकिंग पैटर्न में तब्दीली लाना, नए तरीके से सोचने के लिए बाध्य करना, ये हमेशा से रहा है। ब्रेख्त के नाटक और चर्चित हैं यूरोप में, वो तो प्योर मार्क्सवादी ख्याल के थे, और नाटकों के जरिए वो यही चाहते थे कि जब तक लोगों में आक्रोश न हो, वो कुर्सियां न तोड़े, कुर्सियां न फेंके और व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज न उठाएं, तब तक नाटक का कोई अर्थ नहीं। अब मीडिया जो अभी पनपा है, सिनेमा तो 100 ही साल हुए हैं, टेलीविजन 30-40 वर्षों से चल रहा है, ओटीटी अभी अभी आया है, यहाँ अभी वो बात नहीं आई है। ये अभी पैसे कमाने का ही जरिया बना है और बन रहा है। तो एक तरह से ये अच्छी बात है, और इसमें हर तरह के कलाकारों को काम मिल रहा है। अगर हम सिर्फ थिएटर के जगत की बात करें, तो जो थिएटर वर्ल्ड में एजुकेट होकर, चाहे वो एक्टर्स हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, या जिन्हें प्रोडक्शन करने की भी एक खास ट्रेनिंग मिली है, या आर्ट डायरेक्शन का भी काम मिला है, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉपर्टी और दूसरे तरह के बैक स्टेज मैनेजमेंट का भी जिन्होंने काम किया है, तो उनकी फंडामेंटल ट्रेनिंग तो हो जाती है। अगर उन्होंने 2 साल 3 साल किसी विद्यालय में, किसी इंस्टीट्यूट में सिस्टमैटिक तरीके से बिताया है और उन 3 साल में 10-12 नाटक भी किए हैं, तो उनकी एक ठीक ठाक ट्रेनिंग हो जाती है। अगर वो जॉब ढूंढने के लिए किसी भी मीडिया की दुनिया में जाएं, विच इज अ प्रोडक्शन हाउस, विच इज अ चैनल एंड विच इज अ ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो थोड़ा सा स्टडी के साथ वो अडेप्ट हो सकते हैं और 2-4 महीने के अनुभव से ही वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन एक्टर्स की। राइटिंग की जिसे समझ है, जिसने अगर नाटक लिखे हैं, वो सिनेमा भी लिख सकता है, थोड़े से अध्ययन से समझ सकता है कि स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म में या टेलीविजन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि बुनियादी ट्रेनिंग तो उसकी हो गई, उसको स्टोरी की डेवलपमेंट में बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड की बात से लेकर, कैरेक्टराइजेशन से लेकर, डायलॉग से लेकर, जो थीम है उसके ही दायरे में कैसे रहना होता है, ये सब नाटकों के अध्ययन से और खुद नाटक लिखकर भी एक उभरता हुआ राइटर सीख सकता है, सीखता ही है। और फिर जब वो टीवी पे अप्लाई करता है, तो थोड़ा सा देखकर और थोड़ा अपने सीनियर्स के साथ रह के वो अच्छी राइटिंग कर सकता है, और उसके बाद अच्छी राइटिंग से अपने पैसे भी कमा सकता है। राइटर्स की हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है मीडिया में, फिल्म्स के टाइम से ही, फिल्म्स के समय से ही राइटर्स की दरकार हमेशा रही है। और सिनेमा में तो, या इवन टेलीविजन में और ओटीटी में अलग अलग तरीके से ब्रैकेट किया है। आप केवल कहानी लेखन से भी अपनी बात शुरू कर सकते हैं, आप स्क्रीन प्ले राइटिंग से अपनी बात शुरू कर सकते हैं, आप डायलॉग के एरिया में स्पेशलाइज हो सकते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट राइटर के लिए खुल जाता है। जहां तक डायरेक्टर है, थिएटर का डायरेक्टर, उसे अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है अगर वो मीडिया में कुछ जॉब और अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता है। थिएटर मीडियम में डायरेक्शन एक अलग तरह का है, और सिनेमा में या टीवी में चूंकि वो टेक्निकल ज्यादा है, तो जब तक वो कुछ वक्त किसी सीनियर डायरेक्टर के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं हासिल करेगा, तब तक वो टीवी या फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे विधिवत वो ऑन द जॉब भी ट्रेन हो सकता है। ज्यादातर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही अच्छी रहती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी रहती है। मेन बात करता हूं मैं एक्टर्स की। एक्टर्स की रिक्वायरमेंट टेलीविजन, ओटीटी और सिनेमा में अभी भी बहुत ज्यादा है। पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी, मैं पहले की बात बता रहा हूं, जब सिर्फ सिनेमा था, तब केवल गिने चुने हमारे कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट फिल्मों में होती थी। हीरो हीरोइन है, विलन है, कॉमेडियन है और कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। तो ये 10-15 लोगों के इर्द गिर्द ही फिल्म बन जाती थी। लेकिन अब चूंकि अलग तरीके का सिनेमा भी बन रहा है, टेलीविजन ने हम सबको
एक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए भी आपके अंदर एक मशक्कत की जरूरत है, उस पर भी थोड़ी बात करूंगा। क्योंकि अगेन ये वो काम नहीं है कि आपने डॉक्टर का डिग्री हासिल कर लिया, अप्लाई कर दिया और देर सवेर आपको बुलावा आ जाएगा, आपकी डिग्री के दम पे आपको नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात करूं तो ऐसा संभव नहीं। अभिनय जगत में संघर्ष लगातार चलता रहता है। मेरी उम्र तक भी संघर्ष लगातार चलता रहता है, बच्चन साहब की उम्र तक भी संघर्ष चलता ही रहता है। तो वो संघर्ष बेसिकली एक तो है लोगों से इंटरेक्शन, अपने काम को मार्केट करने की बात, और दूसरा है अपने क्राफ्ट को जिंदा रखने की बात। यहाँ जरूरी ये है कि आप जिस काम से जाने जाते हैं वो काम आपका परिपक्व होते रहना चाहिए, उस काम में आपकी महारत जो है वो बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अभी नए लोगों के लिए बात करूंगा, जो एक्टर्स अभी नए नए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए मीडिया में प्रयास करते हैं, वो एक दो गलती यही हो जाती है कि वो सोचते हैं कि हम इस इंस्टीट्यूट से आए हैं, हमने 3 साल किया है, 5 साल ट्रेनिंग हासिल की है, अमेचर ग्रुप के साथ भी इतना समय रहे हैं, तो लोग हमें हाथों हाथ ले लेंगे। और जहां तक मेन इंडस्ट्री की बात है, अभी भी पूरे देश में, भारत में बंबई ही है जो मेन इंडस्ट्री का गढ़ है। उसके अलावा बहुत थोड़े पैमाने में दिल्ली में कुछ काम होता है, जहां मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। थिएटर में तो छोटे छोटे शहरों में काम होता ही है, लेकिन सिर्फ बॉम्बे ही है जहां पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है एक्टर्स के लिए। तो बॉम्बे का कल्चर और बॉम्बे की लाइफस्टाइल और बॉम्बे का आउटलुक भारत के दूसरे शहरों से बहुत अलग है। तो यहाँ पर बॉम्बे में थोड़ा सा अडेप्ट होने के लिए भी हर किसी को, क्योंकि हम सभी छोटे शहर से आए, मैं तो कश्मीर से आया हूँ, उसके बाद दिल्ली में 10 साल रहा, तो डेफिनेटली एक महानगर में जिस तरह से इंटरेक्शन होता है, जिस तरह से अपने बारे में ज्यादा सोचना होता है, उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में रहने से हो जाती है। फिर बॉम्बे में रह के आपको हार्डकोर प्रोफेशनल आदमी की तरह अपने आप को पेश करना आना चाहिए, और साथ ही साथ जिसका जोर आज के समय में है मार्केटिंग, उसके भी कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड वो सीखना जरूरी है। और वो या तो इनबिल्ट होगा या अपने सीनियर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से आदमी सीखता है कि लोगों से मिलना है, कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना है, ऑडिशंस देने हैं, अपने शोरील बनाना है और लगातार लोगों के संपर्क में रहना है। क्योंकि एक्टर जो शुरू में काम पाएगा वो अपने टैलेंट के दम पे ही काम पाएगा। तो अपने टैलेंट को किसी तरह उजागर करे। अगर उसने थिएटर किया है तो बॉम्बे में भी किसी थिएटर ग्रुप से कनेक्ट हो, वहां पे अपनी जगह बनाने के लिए अगर उसे बैक स्टेज में काम करना है तो वो भी कर सकता है। अच्छा रोल मिल गया, अच्छे रोल के जरिए वो अपना नेटवर्क बढ़ाते हुए कास्टिंग डायरेक्टर्स को बुला सकता है, वो उसका काम देखें। कास्टिंग डायरेक्टर्स ही अभी एक जरिया है सभी एक्टर्स के लिए जो उन्हें फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। अभी बॉम्बे का ये सिस्टम हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। हम जब यहाँ आए थे तब डायरेक्ट मीटिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन का जमाना था। हम लोग अपनी फोटोग्राफ्स लेकर फिल्म सेट्स पे जाते थे और डायरेक्टर से मिलते थे, प्रोड्यूसर से मिलते थे, और वो भी कभी बात करते कभी नहीं करते। तो ये एक संघर्ष का हिस्सा था, मिलने मिलाने का एक तरीका था। और फिर कभी किसी ने VHS आपका वीडियो शोरील मांगा तब दिया, उनके ऑफिस गए, फिर वापस कलेक्ट करने के लिए फिर गए। तो ऐसा एक काम रहता है। ये आपकी मार्केटिंग का पार्ट, बिफोर यू गेट अ जॉब ऑफ और एन असाइनमेंट, इट इज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। ये मैं अपनी वीडियो क्लासेस भी चलाता हूँ, मेरी एक छोटी एकेडमी है, वहां भी मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि एक्टर का काम सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाना चाहिए। एक्टर्स के साथ जो अनफॉर्चुनेट चीज ये हो जाती है, खासकर जिन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम सीख गए, जिन्हें कॉलेज में बहुत तारीफें मिली, जिन्हें कुछ मेडल्स भी मिल गए, तो वो आलसी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इस मार्केटिंग वाले ट्रैक में कम एक्टिव होते हैं। वो सोचते हैं ऊपर वाला दे देगा, या जिसे चाहिए मेरी जरूरत है वो मुझे बुला लेगा, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी सच में हो भी जाता है, मतलब 1000 में 1-2 लोगों को ऐसे आप घर बैठे भी लोग याद कर लेते हैं और आपका पहला काम ही इतना अच्छा होता है कि उससे आपको 50 काम मिलते हैं। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। और वो घटनाएं तो बंद हो गई कि डायरेक्टर ट्रेन में जा रहा है और हठात उसे एक लड़की दिखी या लड़का दिखा और बुला के
हे दिस इज माय कैरेक्टर, और वहां से उसने उठाया और उसको रोल दे दिया। अब वो जमाने चले गए। अभी उसको अगर हे दिस इज माय कैरेक्टर है तो वो शायद भाई की बेटी है या अपना बेटा है या अपनी बेटी है या चाचा की बेटी है, वो घर के अंदर ही घूमते रहते हैं, वहीं पे वो लॉन्चिंग और इस तरह के काम करते हैं। अभी वो फ्रॉम कॉमन मैन की दुनिया से वो किसी को नहीं उठाते, बहुत रेयरली है ऐसा वहां पे। चूंकि अब धीरे धीरे ये एक ऐसा इंडस्ट्री का शेप ले रहा है कि यहाँ रोल्स और डिपार्टमेंट्स बहुत डिवाइड होते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि कास्टिंग एक डिपार्टमेंट बन चुका है बॉम्बे में, तो आदमी को शुरू में उन्हीं के माध्यम से मिलना चाहिए। और अगर वो बहुत अवेयर है, इंटेलिजेंट है, जो कि होना चाहिए, अवेयरनेस और इंटेलिजेंट में एक एस्पायरिंग एक्टर को देश भर के सिनेमा का ज्ञान होना चाहिए, देश भर के टेलीविजन का ज्ञान होना चाहिए, उन तमाम डायरेक्टर्स का अता पता होना चाहिए, उन तमाम प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीजें तो डायरेक्टरी से भी मिलती हैं, लेकिन अपने इंटरेक्शन से आपको सबका पता होना चाहिए। आप अगर इतने स्मार्ट है तो आप किसी के घर भी जा सकते हैं, आप मार्जिन कर सकते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मैं ट्रेंड हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी से आया हूँ, मुझे आपके साथ काम करना है। कोई बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज वो इसी फील्ड का है। और वो आपको अगर आपकी इस बेबाकी से वो अगर थोड़ा बुरा भी माने, लेकिन वो बोलेगा अच्छा मेरे ऑफिस आना 6 दिन बाद, आना 7 दिन बाद, तो आप धमक पड़िए उसके ऑफिस में, अपने आप को ला दिए। पहला काम यही है एम्प्लॉयमेंट ढूंढने का फॉर एक्टर्स। दूसरे डिपार्टमेंट की बात अलग है, वो अपने आप को थोड़ा सा ला दे और होते, they should get either impressed or even if they get irritated by you, that is also good. Why? Because आप उनके जहन में, और कब वो आपको याद करेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि अक्सर कास्टिंग जब हो रही होती है तभी याद किया जाता है। और अगर जिस आदमी ने बुरा इंप्रेशन भी डाला है, लेकिन अगर वो चेहरे से और कद काठी से किसी रोल में फिट हो रहा है, तो डायरेक्टर या कास्टिंग वाला आदमी उसको याद कर सकता है कि अरे वो आया था, वो बड़ा ऐसा परेशान करने वाला बंदा है, ये रोल उसको दे दो, वो परेशान करेगा, इस सीन में अच्छा करेगा। तो ऐसे करके कास्टिंग हो जाती है। तो बेसिकली इसे पुराने लोग कहते हैं कि सर्कुलेशन में रहना। तो आप किसी भी तरह सर्कुलेशन में रहिए। तो उसका आधुनिक तरीका अपार्ट फ्रॉम मीटिंग एंड इंटरेक्शन विद कास्टिंग डायरेक्टर्स है बिफ्रेंड मैक्सिमम पीपल। आपके पास पैसा नहीं है तो नुक्कड़ की चाय पिला के ही दोस्ती कीजिए, बट लोगों से मिलिए, लोगों को अपने बारे में बताइए और लोगों के काम देखिए। बड़ी बात ये है, टीवी देखिए, ओटीटी देखिए, सिनेमा देखिए, नाटक देखिए, और जो उसमें इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मिलिए, उनके काम की तारीफ कीजिए, झूठी नहीं। जिसने सच्चा अच्छा काम किया है बाकायदा उसको अप्रिशिएट कीजिए, और देखिए आप उनके आसपास घूमेंगे, उनकी वाइब्रेशन आपको मिलेगी, आपकी वाइब्रेशन उनको मिलेगी। अपनी ये बात भी उनसे कहिए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और अपने ग्रुप में मुझे ले लीजिए। या किसी बड़े डायरेक्टर को आपने कहा कि मैं आपसे काम को देखता रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी एक जगह बनाइए और सुबह से शाम इसमें ये आपके काम का हिस्सा है। ये फ्रीलांस वर्ल्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। आफ्टर यू लर्न हाउ टू एक्ट, इसमें काफी समझ आता है, और इस दौरान ही आदमी को मुंबई की आबो हवा समझ में आती है। ट्रेन के धक्के खाने हो, बस से जाना हो, पैसा है तो ऑटो ओला कर सकते हैं, लेकिन आपको मुंबई शहर समझ में आता है, यहाँ के लोग समझ में आते हैं, यहाँ का वड़ा पाव समझ में आता है, यहाँ आप जहाँ रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट में है, रेंट में है, वो कितना रूथलेस है, कितना प्रोफेशनल है, ये आपको समझ में आता है। सो धीरे धीरे आप थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट भी होते जाते हैं। और जब आप इसमें समय दे रहे हैं तो आपका फोकस भी यही बनता है कि मुझे अपनी आजीविका इसी से कमानी है। जब ये आपका मंत्र बन जाता है, ये आपका संकल्प बन जाता है, तब वो काम होता ही होता है। आज अगर हम टेलीविजन मार्केट ही कहें तो बच्चे से लेकर, यानी 5 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल की आयु तक के लोगों के रोल्स की रिक्वायरमेंट है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ हर 5 साल में चेहरे भी बदलते हैं। बहुत कम चेहरे हैं मेरे जैसे जो लंबे समय तक 25 साल की उम्र से लेकर 24-25 से लेकर अभी तक किसी न किसी रोल में फिट होते काम करते आए हैं। वरना आप देखेंगे 5-10 साल में चेहरे बदल जाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड फ्रेश फेसेस एंड दे वॉन्ट टू हैव फ्रेश फेसेस। तो ऑडियंस को एक नयापन भी दिखता है। तो ये हुई एक्टर्स की दुनिया की बात। इसके अलावा जिसने थिएटर को बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टडी किया है और थिएटर की क्या ताकत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, थिएटर की क्या ताकत है एजुकेशन में, उनके लिए अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत
अभी हर स्कूल में, कॉलेज में एक करिकुलम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम योग और ये सब की दुनिया है, और साथ में कला की दुनिया है, जिसमें थिएटर, ड्रामा, सिनेमा भी है, म्यूजिक है, डांस है। तो जो लोग बहुत अच्छे से थिएटर को स्टडी करके बाहर निकले हैं और कुछ समय फ्रीलांस रूप में काम किया है, वो बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी में आराम से थिएटर पढ़ा सकते हैं, और थिएटर के जरिए व्यक्तित्व विकास की जो बात है उस पर जोर देते हुए काम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर ये बुनियादी बातें मैंने शेयर की। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो फिर और बातचीत हो सकती है। ललित जी ने बहुत ही विस्तार से, और मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो थिएटर की दुनिया है और वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से किस तरह से जुड़ी हुई है, आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, मानसिक तैयारी भी और दूसरी तैयारियां भी, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा ललित जी, आपसे आज मुलाकात हो रही है। जी जी जी। और मैं बस एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा था कि जब आपने करियर शुरू किया होगा या हम लोगों ने भी शुरू किया था, तब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। यानी ये थिएटर मतलब स्ट्रगल, थिएटर में जा रहे हो तो भाई आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। आज इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, नए नए मीडियम, पहले टेलीविजन आ गया, अब OTT आ गया है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आप, और अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको कोई काम की कमी नहीं होगी। आपके काम इफरात है। आपको एक तो ये ईमानदारी से, लगन के साथ ये थिएटर का कोर्स करना चाहिए, और जब पूरी तैयारी के साथ आप फील्ड में उतरेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही होगी। इंतजार करने से मतलब ये नहीं कि आपके घर आकर बुला कर ले जाएंगी। आपने ठीक कहा ललित जी कि आपको अपनी एक नेटवर्किंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, मिलना जुलना पड़ता है, और उसमें हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। हमारा स्कूल भी सपोर्ट करता है। जो भी बच्चे तैयार होते हैं उनको कैसे हम लोग पूरे कोर्स के दौरान ही इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाना, एक नेटवर्किंग के लिए उनको तैयार करना, इंडस्ट्री के बारे में तैयार करना, क्या क्या जॉब पाथवेज हैं। जैसा आपने कहा कि आप थिएटर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, वो भी एक रास्ता है। तो ये तमाम चीज़ें, इन ऑप्शंस के बारे में हम लोग बताते हैं, तैयार करते हैं। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी के लिए मैं तो जो आपने जहाँ से बात शुरू की थी, क्रिएटिव अर्ज, अगर आप में एक रचनात्मक भूख है तभी आप इस तरह के फील्ड में, जहाँ क्रिएटिविटी की दरकार है, चाहे वो थिएटर हो, म्यूजिक हो, फिल्म हो, मैं जर्नलिज्म में से हूँ तो मैं कह सकता हूँ वहाँ भी अगर आप में वो भूख है, वो जिद्दीपन है और वो विद्रोही तबीयत के आदमी है कि दायरे तोड़ना है, कुछ नया रचना है, तो रास्ते खुलते हैं। आप नई चीजें सीखते हैं इसीलिए कि आपको नई नई चीजें करनी है। आप नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं ताकि आप जो नए चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको ग्रैब कर सकें। तो ये एक तैयारी का हिस्सा होता है। बुनियादी बात है क्रिएटिव अर्ज होना, एक जुनून होना, जिद्दीपन होना, और अगर ये चीजें हैं आपके अंदर तो फिर काम की कमी नहीं होती, काम आपको मिलता ही है, क्योंकि आप में एक भूख है, आप काम ढूंढ लेते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी जो बरस रही हैं वो, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कि थाली में रखकर आपके पास आ जाएगी। आप अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है इसको एक्सप्लोर करते रहें, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। और सारे लोग तो एक्टर बनते नहीं हैं, कुछ साउंड में जाएंगे, कुछ स्टेज क्राफ्ट में जाएंगे। जो भी थिएटर की दुनिया के तमाम तरह के हिस्से हैं उनमें आप एक्सपर्टीज अपनी डेवलप कर सकते हैं। नाटक लिखना है, नाटक एडॉप्ट करना है, कहानी से कैसे एडॉप्ट किया जाता है, ये तमाम चीजें हैं जो आपको एक मुकम्मल, एक प्रोफेशनल बना देते हैं, थिएटर प्रोफेशनल बना देते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं है। स्ट्रगल तो हर फील्ड में, देखिए मैं कहूँ कि थिएटर में ही है, आप किसी भी फील्ड में जाइए,
एक हद के आगे अगर आपको जाना है तो स्ट्रगल करना ही होगा, चाहे जितने भी मौके हो, क्योंकि स्ट्रगल केवल जॉब हासिल करने तक नहीं होता है, उससे आगे जाने का भी होता है कि मुझे ब्रेक तो मिल गया, अब मुझे प्रूफ करना है, एक बार प्रूफ कर दिया, बार बार प्रूफ करना है, ये तो पूरे करियर में चलता रहता है। तो ये एक मानसिक तैयारी और जो दूसरी तरह की तैयारियों की जरूरत आज शुरू हो गई है। टेक्निकल चीजें इतनी ज्यादा आ गई हैं, एआई आ गया है, अब एआई का थिएटर में किस किस तरह से इस्तेमाल शुरू हो गया है उसको जानना समझना, क्योंकि आज से 5 से 10 साल बाद थिएटर क्या शेप लेगा एआई की वजह से हमें पता नहीं। तो वो सब भी जानना सीखना, क्योंकि हमारे जमाने में दुनिया थोड़ा धीरे बदलती थी, अब हर 2-3 साल 5 साल में कुछ नई चीजें आ जाती हैं और वो एक नया चैलेंज हम सबके सामने रख देती है। तो उसको कैसे अडॉप्ट करें, उसके लिए कैसे तैयारी करें, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं बस जो मूल बात है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, नए नए माध्यमों के आ जाने के बाद अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर कहीं कमी होगी तो हमारे आपके अंदर होगी, हमारी तैयारी में होगी। अगर हमारी तैयारी है और आप अगर सही जगह हैं सीखने की, सही इंस्टीट्यूशन में है, सही यूनिवर्सिटी में है, सही फैकल्टी के साथ हैं, वहाँ आपको लगातार वर्कशॉप्स मिल रही हैं, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, आप तमाम तरह के जो उत्सव महोत्सव होते हैं थिएटर के, वहाँ जा रहे हैं, तमाम तरह के थिएटर देख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, खासकर एक्टर्स के लिए, वैसे वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी अप्लाई होता है, वो ये कि जब कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आने की सोचता है, वो अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन ये कर ले कि वो किस इरादे से इस फील्ड में आ रहा है। खासकर एक्टिंग में अगर वो सिर्फ नेम फेम और बड़ा पैसा और स्टार बनने के लिए आ रहा है, तब इरादा थोड़ा सा गलत है। अगर वो इसको एक बाकायदा एक सब्जेक्ट की तरह लेके स्टडी करे, तो आज मौके भरपूर हैं। जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, आज मौके हैं। जैसे मेडिकल साइंस में मिनिमम 6 साल है, कुछ आगे बढ़ना है तो और 2 साल 4 साल 15 साल तो वो बेचारे पढ़ते ही रहते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बनता है तो यहाँ मिनिमम 5-7 साल की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए आपकी। तो आप बाकायदा जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मौका मिलेगा और आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। ये लक्ष्य अगर आदमी ले अपने जीवन में कि मैं क्या कला से एक डिसेंट लाइफ जी सकता हूँ। अब डिसेंट लाइफ का भी मापदंड क्या है? अगर आपको पहली मर्सिडीज चाहिए फिर बड़ा मुश्किल है। अगर आप एक खास उम्र में अपना एक घर खरीद लेते हैं, आपके बीवी बच्चे भी होते हैं, उनका लालन पालन आप कर पाते हैं और कुछ सेविंग्स भी आपके पास होती हैं, जो एक मिडिल क्लास डिसेंट लाइफ कहलाता है। अगर वैसा आप जीवन जीने के लिए रेडी हैं तो कला ओपन है अब। खासकर ये थिएटर का जगत, एक्टिंग का जगत, इवन द राइटर डायरेक्टर का जगत, ये ओपन है और इसमें आपको काम मिल जाए और आप एक ठीक ठाक जीवन जी सकते हैं। स्टार्स जो बनते हैं उसका भी जो मैकेनिज्म है और ग्रामर है वो बियॉन्ड क्या कहते हैं लॉजिक और रैशनैलिटी के है। वो कुछ ऊपर से ही चला आता है। क्यों किसी एक को इतना मिलता है कि पूछो मत। ये वैसे हर क्षेत्र में होता है, स्पोर्ट्स में भी है, ओलंपिक्स में भी है। इट कांट बी डिफाइंड। इसको आप बाकायदा इसका कोई कोर्स नहीं बना सकते, हाउ टू बिकम अ स्टार। डेफिनेटली। सर आपसे जैसे आपने अपने डिस्कशन के दौरान 2 बातें महत्वपूर्ण कही कि एक तो आप नेटवर्किंग करें, आप कंटिन्यूस एक काम करें सुबह से उठ के शाम तक। दूसरा अपने क्राफ्ट में मैच्योर हो। उस लिहाज से जैसे हम डिपार्टमेंट की बात करें तो हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे बेस्ड या बीएनए पे बेस्ड और जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहते हैं, उनकी सलाह मशवरे से हम एक करिकुलम डिजाइन करते हैं। उसमें फिर जो हमारे पास गेस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं इंडस्ट्री और अकेडमिया से, उनसे बच्चों के वर्कशॉप्स होती हैं हमारे यहाँ। और उसके अलावा जैसे शो रील्स का आपने बताया, उसमें जो एक सपोर्ट है, या इट फोक है, भारत रंग महोत्सव है,
वहां जाना, वहां डायरेक्टर से बातचीत करना, ये सब चीजें मिला करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे अमेंडमेंट्स और अपडेशन की जरूरत है वो सब करने के बाद, लेकिन उसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे बच्चे हमारे जो पास आउट में होते हैं, जैसे मार्टिना आज हमारे साथ हैं, किस तरह से कंटिन्यूस मैच्योरिटी और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक एक्टर स्पेशली कर सकता है, उसको करना चाहिए, उस बारे में भी मैं ऐसा गाइडेंस लेना चाहूंगी। देखिए, हाँ, ये सही सवाल है। वो तो ग्रोथ तो अपने लेवल पे ही, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ ही होती है, और वो कंटिन्यूअस स्टडी एंड लर्निंग से ही होती है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल कुछ कुछ काम करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कहूँ तो अगर आपने थिएटर में एक तरह से एक्ट किया, कुछ प्लेस किए, आपको तारीफ मिली, अब आप बॉम्बे में आके किसी टीवी शो में या किसी ओटीटी में आपको कुछ 5 मिनट का 10 मिनट का रोल मिला। जब आप अपने रोल को देखते हैं, खुद देखिए और बहुत क्रिटिकली देखना पड़ेगा। फिर जब आपने देखा कि शॉट लेते वक्त क्या माहौल था, तब मेरी मन की तैयारी क्या थी, नए एक्टर्स को कितना कम टाइम मिलता है लाइनें याद करने के लिए, ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, इसको ओवरकम करने के लिए आप अपनी मन की तैयारी बनाते रहें। और साथ में आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए बाय वॉचिंग सिनेमा एवरी डे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव। यू कैन सी कि ये जो ग्रेट एक्टर्स हैं ये कैसे एक्ट करते हैं। आप पुरानी फिल्में, राज कपूर की फिल्में फिर से देखिए, आप हॉलीवुड की पुरानी फिल्में जो आपने कोर्स में शायद देखी हो, अब फिर से देखिए। तो वो लर्निंग है, वो आपको छोटी छोटी चीजें जो नुआंसेस हैं उसमें आपको समझने को काफी कुछ मिलेगा, और फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसा है कि आपने मतलब मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, तो पहले आपने बहुत ही 7वीं 8वीं कक्षा के लेवल का कुछ लिखा लेख, अभी आप 10वीं में पहुंचे, आपने चलो प्रेमचंद को भी पढ़ लिया, तो आप उनके जैसा लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी और बेहतर लिखा। फिर आप और बेटर राइटर्स को पढ़ रहे हैं, आपने रामायण का भी अध्ययन कर लिया, तब जाके आपको लगा चलो मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ। सो कंटिन्यूअस अपना जो इंट्रोस्पेक्शन के साथ ग्रोथ है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। खतरा यही होता है एक्टिंग लाइफ, हालांकि थोड़ा सा राइटिंग डायरेक्शन में भी होता है, दैट आई हैव अराइव्ड, अब तो मैं पहुंच गया हूँ। वो जो आपके अंदर का एक प्यासा लर्नर है, वो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, वो नहीं मरना चाहिए। तो उसको अगर आप जिंदा रखें, और हमेशा सीन करने के बाद यही ख्याल जब अगर आपके मन में आता है, अरे इसमें काश मैंने ये लाइन ऐसे बोली होती, काश मैंने ये ऐसे किया होता, ये जिसका जितना चलता रहेगा वो उतना ग्रो करता जाएगा। और चूंकि ये इसको बोलते हैं करनी की विद्या है, तो इसमें गैप्स आपके ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो आपने सोचा है काल्पनिक जगत में, जो आपने सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा क्रिएट करूंगा, वो आपको मौका मिलना चाहिए, वो मौका लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा, उसमें लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हुए एक्चुअल मैदान जंग में जब आप शॉट देते हैं, सीन करते हैं, उस वक्त भी आपकी क्या मानसिक तैयारी होनी चाहिए, इस सब को लेकर अच्छा काम होता है। थिएटर में तो फाइनल परफॉर्मेंस सब कुछ होती है, लेकिन रिहर्सल्स बहुत होती है। सिनेमा में, टीवी में तो बस एन वक्त पे शॉट दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कई बार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं नए आदमी के लिए, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना भी एक चैलेंज है। तो कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, कैसे सीनियर्स की वजह से अपना कॉन्फिडेंस बिगड़ने नहीं देना, कैसे कोई तुम्हारे साथ थोड़ी शैतानी और बदमाशी भी कर रहा है, उसको भी कैसे समझदारी से मैनेज करते हुए अपना बेस्ट देना, ये सब आपको सीखना पड़ता है, तभी आप और बेहतर हो सकते हैं। सर हमारे साथ हमारे एक्स स्टूडेंट मार्टिना भी हैं। मार्टिना, मैं चाहूंगी आप क्योंकि अब फील्ड में जा रही हैं, जा चुकी हैं, आपके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ हमारे साथ बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत अच्छे अच्छे नाटक मुझे आपके याद आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस याद आती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपका अनुभव रहा, किस तरह से आप समझती हैं कि ट्रेनिंग ने आपको हेल्प किया, या और किस तरह से आप आगे अपना प्लान देखती हैं, मार्टिना? उससे am I audible? Yeah, okay. जी। So beside being one of the members in the panel, I am so privileged that I am one of the panelists among you all. And coming to your question, LPU में जब मैं थी, I was very privileged to be one of the first batches of the department.
like कुछ ही साल हुए थे department has started. That time the environment was different. Recently I had a visit for the homecoming alumni to LPU itself, and the drastic change I have seen, that I hope that कि मैं काश अभी जाती LPU पढ़ने. There was so much of opportunity, so much of development in the architecture, in the technical things. उसके बाद after passing out from LPU, मेरा ये था कि no, जैसे ललित सर ने बोला, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. You should always keep enhancing your craft, reading materials, watching movies, and everything that he has said. Other than that, जब मैं LPU से pass out हुई, I was like, no, I have to study more. मेरा rather than going into the field, I thought कि मुझे I have to study more. So I got admission in Bharatiya Natya Academy. After that, मुझे सच्ची में लगा that yes, this was a very right decision, because आप 24 hours में से 24 hours you are in that environment with books, with teachers, with classes, acting की class, stagecraft की class, and this environment, चाहे वो BNA हो, चाहे वो NSD देता हो, चाहे वो MPSD देता हो, this environment really helps you कि आपको फील्ड में जाकर करना क्या है. जैसे सर ने बोला, that is the very important thing, that you want to be an actor, you want to be a designer. That environment really gives you कि आपको सोच वो डायरेक्शन खुलता है कि आप रियली किस में अच्छे हो, कौन से फील्ड में अच्छे हो, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए. अगर ऐसा हुआ, like I had a very difficult choice to make, that I love to do everything. मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ, कॉस्ट्यूम भी कर लेती हूँ, डिजाइनिंग. It was very difficult for me. Right now also I'm struggling with that. Other than that, अगर मैं struggle कर भी रही हूँ, there are many theater people who are also like this, कि उनको पता नहीं चलता है कि वो फील्ड में जाके करे क्या. अगर मुझे ऐसा लगता है, out of my experience, अगर आपको एक्टिंग ही करनी है, then you should really focus in acting. You have, if you want to go to Mumbai, you should go to Mumbai, but ऐसा नहीं फिलहाल पैसे कमाने के लिए मैं कुछ और कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. You should really find opportunities based on acting only, because the more time you give in networking, the more time you give in searching for casting agencies and jobs in acting, that will be more beneficial than you surviving Mumbai with other jobs. उसके अलावा जैसे हम लोग का टॉपिक है अभी right now, the employment potential. Other than really working in platforms like TV, OTTs, and theater houses, other than that, I really feel that Lalit sir ne bhi mention kiya tha, educational institutes. Educational institutes may, like I have an experience after just I pass out from BNA, I joined Gurgaon school mein. There are so many opportunity in the education sector, because अब हर जगह ये class 10 तक it has been made compulsory that nursery से लेकर class 10 तक सब बच्चे theater पढ़ेंगे. It's not about the depth of the theater, but as I'm continuously referring from sir's talk, that it's not only about learning acting, it also really develops your personality, your confidence, the way you speak, the way you stand in front of people, the way you, the whole body language, your whole personality. Theater has such power, such capabilities that develops it from a very basic age. So other than that, we can also find opportunities in the corporate sectors, because corporate sectors में जैसे हो जाता है कि 9 to 5 job करते, the people in the working sector, they forget what feelings and emotions are. They forget how to really tackle their real feeling, and वो काम में busy रहते हैं. Corporate sectors are also giving opportunities for theater people who comes and gives workshops to the employees
to do a catharsis exercise with them, like to refresh them, like to cleanse them out of their burden, Suppressed their emotions. pressure. Yes, sir. Their suppressed emotions. Yes, their suppressed emotions, so that they can work more nicely in their job. And so the corporate sectors even are taking help of the theater people and the theater educationists. So that other than that, one more thing we can do. We have a very good trend कि हम institute से निकल के ये सोच, let's make a theater group. बहुत सारे ऐसे theater groups हैं जो it's registered by name but it's not working because they make theater group बना लेते हैं, they stop working. But theater group can be a platform for those people who doesn't get admission in schools like NSD or BNA. जो हम लोग, अगर हम लोग कोई भी पास आउट बच्चा, जैसे मैं BNA से हूँ, NSD से कोई है, हम लोग एक theater group बनाए, we can give a platform to those actors who wants to learn something. Almost we can give the same education, but we won't be giving them the qualified name of a school. लेकिन हम जैसे हम वहाँ से पढ़े हुए, we will be giving the same learning experience to them. That is my thinking. So forming theater groups can be also a very good opportunity for employment. Yeah, and one more thing कि geographical location also matters a lot कि एक बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसको opportunity वहाँ मिलेगी कि नहीं. अगर वो इतना capable हो जाता है कि अगर जिस भी native background से वो आता है वहाँ पे नहीं मिल रही है, I hope that kind of theater practitioners or theater person should think that मैं अपनी जगह में वो opportunity कैसे लेकर आऊँ. So some of the thoughts that I wanted to share after so much of discussion on this topic. Yeah. Thank you so much, Martina. It was really a nice discussion. Coming back to Parimoo sir, I would just like to have your final words on the discussion and how the aspirants of joining this field as a career can remain motivated till their journey and can remain active as the field requires them to be. Sir, over to you. हाँ, तो उसमें आज की बातचीत से ही निष्कर्ष निकलेगा कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वो 18 से 25 में पूरी कोशिशें कर लें और इस दौरान ही उन्हें ये पता लगेगा कि वो इस फील्ड के लिए बने हैं या नहीं बने. ये टाइम स्पेन आपको स्पेंड करना चाहिए. तो अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आप फौरन वहीं पे थिएटर करना शुरू करें और उसके बाद अगर आप विधिवत 2 साल 3 साल की कोई थिएटर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद से ही अपने आप को मैदान में उतार दें और वहां देखिए कि आप कैसा फेस करते हैं सिचुएशन. तो क्या आप साइकोलॉजिकली रेडी हैं? अगर आप साइकोलॉजिकली रेडी हैं तो आप तैर जाएं, यू विल क्रॉस द ब्रिज. और अगर आप साइकोलॉजिकली रेडी नहीं हैं, आपको ये पता चलेगा तो आप लौट के आ सकते हैं. और आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए अपने जीवन में, जो प्रोफेशन कुछ और हो, बट जिसके अंदर थोड़ी सी भी प्यास है उसे प्रयास जरूर करना चाहिए. बिकॉज ये किसी को पता नहीं चलता कि ये प्यास, जो हल्की प्यास है, ये बड़ी प्यास कब बनती है और कब आप ही के अंदर का छिपा हुआ आर्टिस्ट बहुत बड़ा आर्टिस्ट कैसे बन सकता है. ये नोबडी नोज इट. तो अपने उस प्यास को सप्रेस ना करें, गिव इट एन अपॉर्चुनिटी. उसको एक मौका दें फलने फूलने का. और अपने थोड़ा सा सेफ चल सकते हैं आज की दुनिया में. आज का वक्त ऐसा है कि 100% रिस्क नहीं है. यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही सकता है. और 4-5 साल 7 साल इस फील्ड में बिताने के बाद हर कोई इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि यार ये मेरे लिए बना है या नहीं है, और एम आई कट आउट फॉर दिस और नॉट. और एक बार आपका वो अंदर का आर्टिस्ट बन गया, इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप अंदर से साइकोलॉजिकली आर्टिस्ट बन गए तो 50% जॉब इज डन. देन यू कैन लिव इन वन रूम ऑल्सो एंड थिंक बिग एंड मे बी वन डे डू बिग. बट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली आपका कलाकार बनना जरूरी है. तो वो कला से प्रेम, फिर एक ही कला से प्रेम नहीं होता, कला फिर पूरी विस्तृत है.
फिर म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म सब आता है। दुनिया भर के कलाकारों की बायोग्राफीज का अध्ययन और उनसे इंस्पिरेशन लेना, उनसे मोटिवेशन लेना, ये सब सीखते रहना पड़ता है। हाँ, बस अपने आप को हताशा की गर्त में जाने नहीं देना है, उससे बचाना है, क्योंकि लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ वर्क आपको ऐसा कर सकता है। हाँ, जो चीज मैं सबसे कहता रहता हूँ, खासकर अपनी वर्कशॉप्स में, शराब और ड्रग्स से अपने आप को बचाना है। अगर आप ये काम कर ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि शराब पी के तो हर कोई राजा हो जाता है, और ड्रग्स एक ऐसी बीमारी की दुनिया है, इसमें एक बार अगर कोई फंस गया तो वो किसी काम का रहता नहीं। ये सब कहानियां हैं और किस्से हैं कि ये आर्टिस्ट भी चरस पीता था यार, ये भी ऐसा करता था, वो उनका मादा वैसा होगा, उनका बॉडी सिस्टम वैसा होगा कि वो बचा लेते थे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। सो मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस ट्रैक से बचाने की बात करता हूँ एस्पायरिंग पीपल को या नए लोगों को। बल्कि उससे अच्छा और बेहतर जो चीज है वो है आप स्पिरिचुअल ट्रैक पे चलें। खाली वक्त है, अगर लंबा समय आपके पास काम नहीं है, आपका मन भी नहीं कर रहा, लेकिन पैसे हैं आपके पास कुछ, जैसे कलाकार का जीवन होता है कि 3-4 महीने का तो पैसा है, ठीक है, उस दौरान आप कहीं योग मेडिटेशन सीख लें और पढ़ें, गुनें स्पिरिचुअल टीचर्स को, तो उस ट्रैक पे भी अपने आप को ले सकते हैं। बिकॉज कला और आध्यात्मिक साधना ये कहीं गहरे में कनेक्टेड है। पुराने लोगों में तो जो आध्यात्मिक साधक थे वही कलाकार थे, मतलब कला की सीमा राइटिंग और काव्य जगत तक सीमित थी, या चित्रकला और मूर्तिकला से थी। तो साधक लोग ही चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और कवि थे। पुराने ड्रामा में भी तो फिलोसोफर पोएट कहा जाता है ना, तो पोएट वो फिलोसोफर्स। तो फिलोसफी की दुनिया में अपने आप को ले जाइए, वहां से कुछ सीखिए और साथ साथ संघर्षरत रहिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो मैं खुद ले पाई हूँ एक दो बच्चों के लिए, ये कि आप ड्रग्स से और किसी तरह के भी नशे से दूर रहें, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें। जैसे कि बहुत दूसरे फील्ड्स में भी ऐसा ही होता है, हमें पता नहीं ये माइंडसेट हमारा बन गया है कि इसी में मेहनत है। डॉक्टर्स हैं 15-15 साल की ट्रेनिंग के बाद भी कई बार प्रैक्टिस नहीं चलती है, तो जिनमें नहीं है वो बात, उनके लिए कोई भी फील्ड नहीं है। लेकिन जो मन से पैशनेट होके और अपना सब कुछ झोंक देने को तैयार है, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। सर, एक प्रश्न मैं देख पा रही हूँ। जी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि जी, क्वेश्चन आया। डॉक्टर जयकाल पावर की तैयारी कैसे की थी आपने सर? पहले के मुकाबले आज के समय में क्या अभिनय बदला है, ये सवाल है सर। वन ऑफ द पैनल। तैयारी अपनी तरफ से कुछ खास नहीं थी, क्योंकि काम तो कर ही रहे थे, हम टेलीविजन में काम कर रहे थे और एक रोल आया और उसमें जो डायरेक्टर थे वो चाह रहे थे कि थोड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, बच्चों के लिए है, सो यू हैव टू ओवर डू लिटिल थिंग्स। तो ओवर डू में थिएटर का ट्रेनिंग ही काम आता है, थिएटर तो हमने किया ही था खूब, तो इसलिए वो थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक प्ले करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, तो इस तरह से चलता रहा। आज ऐसे रोल और ऐसे सीरियल कम बन रहे हैं, लेकिन अगर बनेंगे तो भी अगर ऐसा कैरेक्टर होगा तो किया जा सकता है, करना चाहिए। और अभी चूंकि सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग जनता में भी बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ा कम लोग इस तरह के मेलोड्रामेटिक कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। जैसे अगर हम रामायण या महाभारत पुराना देखें तो वो वैसे भी ओवरबोर्ड परफॉर्मेंस होती थी, तो आज थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक स्कूल ज़्यादा हावी हो गया है, लेकिन फिर भी मेलोड्रामा की अपनी वैल्यू है। अगर उसको ठीक तरीके से किया जाए तो उसका भी प्रभाव रहता ही है, बट वो इस तरह से होना चाहिए, तलवार की धार पे करने की जरूरत है, वो ऐसा ना हो कि झूठा लगे। असर अगर उसका अच्छा है तो फिर अच्छा है। जी, एक सवाल सर और आया है, इस तरह की भूख ये रहती ही है। मैंने भी जो सवाल पूछा था वो इससे मिलता जुलता था कि किस तरह से जो थिएटर के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसा हमारा रिचुअल हो जो हमें करीब बनाए रखे, हमें खुला रखे, हमें ओपन रखे जीवन में, क्योंकि बहुत बहुत कुछ होता जाता है, कई बार हम अपने आप को, अपनी उस भूख को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सवाल है सर, मैं सजेस्ट सम एक्सरसाइजेस फॉर थिएटर स्टूडेंट्स, अगर आप तो अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं?
ये शिवम राय का सवाल है। ये बीएनए से पास आउट हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं हमारे कि यहाँ। उसमें एक वक्त के बाद तो जनरल बड़ा मुश्किल है कहना, वो व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग होगा ना, कौन किस लेवल पे है। जो अभी एकदम ट्रेनिंग हासिल कर रहा है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइजेस होंगी या अलग रूटीन होगा। अगर हम कहें रूटीन, जो अब मैदान में कूद चुका है, जॉब के लिए अब ट्राई कर रहा है, तो उसका रूटीन अलग होना चाहिए। सर शायद शिवम सर का सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी पढ़ रहे हैं, हाँ, तो उनके दे लिए आर अंडर ट्रेनिंग। वो लोग विद्यार्थी हैं। तो अभी किसी ने एक्टिंग को अपना स्पेशलाइजेशन माना है, तो एक्टिंग को लेकर सुबह से ही उसे रियाजरत रहना चाहिए। 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, एक रूटीन बनाए, पहले फिजिकल एक्सरसाइजेस करे, उसके बाद थोड़ा सा योगासन का भी अभ्यास करे, फिर नाश्ता कर ले, थोड़ा ब्रेक के बाद फिर वोकल एक्सरसाइजेस कर ले, आवाज पे काम करे, कुछ नाटक का अध्ययन करे, कुछ गीत पढ़े, जितने अच्छे कवि हैं उनका वाचन करे। फिर अगर किसी प्ले में काम कर रहा है तो उसमें जो रोल मिला है उसको, उसके स्टडी के लिए जो उसे टीचर्स ने बताया है उस पर काम करे, उसका साइकोलॉजिकल स्टडी करता रहे, उस कैरेक्टर की बारीकियों को जाने, उस कैरेक्टर के बारे में लिखे, उसका पूरा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस तरह से उसकी पूरी एक आत्मकथा बनाए और उस पर काम करे। और रिहर्सल्स कर रहा है तो शिद्दत से रिहर्स करे। और जीवन को पूरा अभिनय की शिक्षा में ढालने के लिए खाली टाइम में सड़कों पे घूमो, दुकानदारों से मिलो, लोगों से बातचीत करो, तरह तरह चरित्रों से खुलकर बात करो और देखो नए नए लोग, नई नई आवाजें, नए नए बॉडी लैंग्वेजेस और अपने अंदर उठते गिरते नए नए भाव, यही आपका रॉ मटेरियल है। तो एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर ये चलता ही रहता है। तो एक बार अपने आप को इस पैटर्न में ढाल लेना जरूरी है कि शारीरिक व्यायाम करना है, अपनी वॉइस के लिए कुछ करना है, वाचन के लिए कुछ करना है और दुनिया को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को भी ऑब्जर्व करते रहना है अपना। मैं तो अपनी क्लासेस में यही कहता हूँ कि व्हाट इज एन आउटलुक ऑफ एन एक्टर। एक्टर का आउटलुक क्या है? थिएटर में राइटर डायरेक्टर भी अलग डिपार्टमेंट है, मैं इसीलिए सबको मिक्स करके नहीं कह सकता। एक्टर का आउटलुक है ऑफ एन ऑब्जर्वर। यू शुड बी एन ऑब्जर्वर। आपका 24 घंटे का समय, एक भी घंटा ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि जब आपने पैनी दृष्टि से उस समय को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को और अपने आप को न देखा ठीक से। वॉच कर, वो याद रहना चाहिए आपको, ताकि जब आप शाम को लेटे सोने से पहले तो आपके मन में वो तस्वीरें, वो घटनाएं अच्छे से घूमे और आपको अपने बारे में ही कोई नई बात समझ में आए, कोई नया एंगल दिखाई दे आपको, अपना ही अपना नया आयाम, अपना कोई नया इमोशन या पुराना इमोशन वापस नए फॉर्म में दिखाई दे। ऐसा होता है। आप जब इमोशन की दुनिया में घुसते हैं तो शुरू में तो अक्सर 99.9% लोग नकली इमोशन से काम करते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अभी सच्चा प्रेम हुआ ही नहीं है तो आप प्रेम के भाव कैसे लाएंगे? तो आपने जो पर्दे पे देखा है, जो औरों को देखा करते हुए, वही करते हैं। लेकिन कभी आपका सच्चा प्रेम हुआ, मतलब किसी लड़की से प्यार हुआ, लड़की का लड़के से प्यार हुआ, तब आप अपने शरीर की भाव भंगिमा को याद करें। तब आपकी आवाज कैसी थी, तब आपने कैसे बोला, आपके लुक्स कहाँ थे, आपकी आंखों में क्या बात थी, इसको जब आप याद करें और नोट करें, तब वो आप सही तरीके से उसका एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन तब आएगा। नहीं तो औरों ने जो किया है वो तो करना बड़ा ही आसान है। हाँ भाई, प्यार में सॉफ्ट वॉइस होती है, उससे में आवाज चढ़ जाती है, हैरानी में आंखें फैल जाती है, डर में आदमी सिकुड़ जाता है। ये बुनियादी जो रंग है ये तो सबको पता है, लेकिन आपकी क्या विशेषता है? तो आप अपने आप को एक लेबोरेटरी की तरह लगातार स्टडी करते रहें। ये तो खैर आपका मेन मकसद होना ही चाहिए। स्वयं को जानने की राह में कला के जरिए ये अपने आप में एक मिशन बनना चाहिए। सर विद ड्यू परमिशन मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर ऐसा कोई एज क्राइटेरिया टू स्टार्ट योर journey in Mumbai? Like suppose if I take my example, I'm 28 and after education and in the education field working and also as a training student, if I want to start my career, like I want to go to Mumbai at this age, is it a good choice for me
to go there? This is a question of a huge. मैं just अपना Yeah. example दे रही हूँ. See, when you think of going to Mumbai, shifting to Mumbai, so you must have 3-4 things clear in your mind. First, which area you want to work, because Bombay is a highly professional world. If you, at the same time, if you're trying to act, trying to write, trying to direct, or trying to do costumes or production at the same time, then people will get confused. Right. You have to focus on one department. Right. If you want to have a safe entry, you can try for a job in production houses. There we have EPs, or there we have creative heads or assistant creative heads. They are paid decently. In a production, for a person like you who has got an experience of doing theater, then another school, then practical work, you're qualified to become an associate creative head in a production house or in a channel. So these are safe jobs. But if you want to enter into the world of acting, it's a little more riskier, because immediately you cannot find a job. So what you must have as a backup plan is, you must have sufficient money so that you can survive here for at least 2 years. You should give Bombay at least 2 years if you want to try in Mumbai. So either you should be clear that what part-time job I'll do in Mumbai, or you must have sufficient money that will survive you for 2 years. And 2 years is a sufficient time for you to become self-dependent in any department. And if you do not get, if you're trying as an actor and if you do not get a job as an actor, then acting is not meant for you. This is the clear indication of nature, you know. But when you're trying for acting, try aggressively. You have to try very aggressively. Thank This you. was, thank you so much. This was a much needed answer, sir. Thank you so much for your time, sir. We have already taken much of your time. But from today's discussion, I would really want your more time for us, for my students, for the students of this university, the future to come. And I think one thing that has really motivated us today is that with right passion, right intention, there are ample opportunities. As sir rightly said, and Martin also added, that corporate sector, sector of counseling through theater, sector of training in theater, actors and other safe jobs, even in Mumbai that sir mentioned. So the future is bright, but the prerequisites remain there as they are in other fields also. So my dear students who are watching us, I welcome you to this world of theater, but keep in mind the things that sir and Martina shared with us today. Thank you so much, Lalit sir. It was really wonderful interacting with you. The knowledge, the experience was very, very obvious in your words, and we have learned a lot. And most importantly, I feel that my passion has also ignited once again. And as you answered to Martina's questions, you know, we often go into comfort zones in our families, in our jobs, 9 to 5. और शायद वो जो रेबल है हमारे अंदर, हम उसको टेम कर लेते हैं, टेम करना सीख जाते हैं. बट मेरे स्टूडेंट्स या हमारे बच्चे उसको टेम करना जल्दी जल्दी न सीखें, जीवन को मौका दें. और अगर आप में पैशन है, आप में ट्रेनिंग आपकी है और ट्रेनिंग चलती रही है, वो भूख चलती रहे, तो ये वर्ल्ड आपके लिए खुला है. थैंक यू सो मच ललित सर, थैंक यू सो मच मार्टिना, थैंक यू सो मच मानसी फॉर दिस वंडरफुल session. Thank you, sir. Thank you. We look forward to your guidance to our students in the near future also. Offline, कभी offline कुछ करेंगे. जी, we will look forward to your longer workshop. I hope you will be able to give us time. Thank you so much, sir. Thank you all. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And all our participants are also saying thanks to you, sir. So at last, I would also just want to add, like, I have got good amount of learnings. First thing was when Martina said this example that she gave, that there are ample amount of opportunities in corporate world also. So that like really powered me, like, okay. So this was something new that I'd learned. And of course, all the experiences that sir you have shared, they're really appreciative. That's all I can say. And with this, I think I would just take your permission to end this session. Can I, sir? Can I, ma'am? Yes, Definitely. yes.
Thank you. Then Thank you, so much. Manshi. Thank you, ma'am. Thank you, sir.